All right. Convert the following temperature to Celsius. કેલ્વિન માંથી સેલ્સિયસ માં કન્વર્ટ કરવાનું છે આપણે. તો અહીંયા આપણે 273 માઈનસ કરવા પડશે. 300 minus 273. તો તમારું બનશે સેલ્સિયસ. Yesterday I told you we had to plus it, we have to minus it. Minus 273. सेल्सियस टू केल्विन करे तो આપણે 273 પ્લસ કરવાનું અને केल्विन से अगर सेल्सियस करेंगे तो 273 माइनस करना है. ठीक है. Okay, today we are going to learn evaporation. Okay. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Need to heat or change pressure. हीट या प्रेशर की हमेशा में जरूर पड़ेगी. Can you quote some examples from everyday life where change of the state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Boiling point से पहले ही liquid to vapor हो जाएगा. Water when left uncovered, water को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, water when left uncovered slowly change into vapor. धीरे धीरे क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में निकल जाता है. Wet clothes dry up, गीले कपड़े सूख जाते हैं. What happens to water in the above two example? तो water कहाँ जा रहा है? We know that particles of matter are always moving and are never at rest. जो पार्टिकल्स है मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles which with different amount of kinetic energy. अलग-अलग पार्टिकल्स में अलग-अलग अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है. In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy. इसे याद रखना है. In the case of liquid, small fractions of particles at the surface having higher kinetic energy. लिक्विड में जो ऊपर सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. He is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. जो ऊपर की लेयर जो होती है, जो सरफेस होता है, उसके पार्टिकल्स लेयर को छोड़ के बाहर चले जाते हैं और वेपर स्टेट में आ जाते हैं. This phenomenon of changing of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. ठीक है. पानी कोई भी टेम्परेचर पे अपना लिक्विड स्टेट छोड़ के गैसियस स्टेट में चला जाता है. अगर बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे. ठीक है. Evaporation, change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही वो अपना लिक्विड स्टेट छोड़ के वेपर हो जाता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन कैसे होता है, तो कैसे होता है? You must have observed that the rate of evaporation increases with
एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, जैसे वी नो दैट द इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, ये क्या है, सरफेस फेनोमेनन है, मतलब जितना बड़ा सरफेस उतना इवेपोरेशन बढ़ेगा। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them over. कपड़े हैं उसे ढगला करके डाल दोगे तो सूखेगा नहीं, उसे खोल के अगर डालोगे तो सूख जाएगा, ठीक है। मतलब जितना उसे सरफेस एरिया जब बढ़ेगा उतना इवेपोरेशन बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से भी इवेपोरेशन बढ़ता है। With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वेपर स्टेट में आ जाएगा। चलो थर्ड पॉइंट है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ, ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, वाटर वेपर एयर में कितना है उसे ह्यूमिडिटी बोला जाएगा। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. जो हमारे सराउंडिंग में एयर है उसमें ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। If the amount of water vapor in air is already high, अगर एयर में पहले से ही वाटर वेपर है, the rate of evaporation decreases, तो ज्यादा उसमें फिर वाटर वेपर नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब इवेपोरेशन जो हमारा है वो कम हो जाएगा। मतलब जब मानसून होता है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि पहले से ही ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। समर में क्या होता है, एयर ड्राई होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी का पॉइंट समझ में आ गया सबको। उसी तरह एयर इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड ज्यादा है, जैसे समुद्र किनारे को सुखाने डालेंगे तो जल्दी सूख जाएगा। It is common observation that clothes dry faster on a windy day. Clothes dry faster on a windy day. With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind. Particles wind के साथ चले जाते हैं, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. आजू बाजू का सराउंडिंग मतलब वाटर वेपर कम हो जाते हैं तो ज्यादा इवेपोरेशन हो सकता है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होगा। इन एन ओपन वेसल, कुछ ओपन वेसल ले लेते हैं, द लिक्विड कीप्स on evaporating, the particles of liquid absorb energy from the surrounding. Liquid जो particles होते हैं, the particles of a liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. इवेपोरेशन के दरमियान जो एनर्जी चली जाती है उसको वो आजू बाजू के सराउंडिंग से लेता है। This absorption of energy from the surroundings make the surrounding cool. तो आजू बाजू की एनर्जी जो लिक्विड में आ रही है तो उसके कारण आजू बाजू का एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। What happens when you pour some acetone? Acetone क्या है, nail polish remover, nail polish remover on your palm, nail polish remover को हमारे palm पे लगाएंगे तो क्या होगा, cool feel होता है हमें। The particles gain energy from your palm or surrounding.
जैसे उसको नील पॉलिश रिमूवर एसीटोन को हम पाम पे लगाते हैं अपनी हथेली पे, तो आजू बाजू की एनर्जी वो खींच लेता है, आजू बाजू की हीट अपने अंदर खींच लेता है, और आजू बाजू की हीट एसीटोन के अंदर चले जाने से हमें क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. आजू बाजू की एनर्जी एसीटोन में चली जाती है और वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें ठंडक फील होती है। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof of the open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. ठीक है, हम इधर उधर छंटकाव करते हैं पानी का, स्प्रिंकल वाटर, टेरेस पे स्प्रिंकल करते हैं या अपने घर के आगे भी पानी डालते हैं, ठीक है, रूफ और ओपन ग्राउंड। क्यों? उससे क्या होता है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। जैसे ही पानी डालते हैं तो सरफेस की जो एनर्जी है वो किस में चली जाती है, वाटर में चली जाती है, और वाटर इवेपोरेट हो जाता है, मतलब उस सरफेस को ठंडा करते हैं, मतलब ओपन ग्राउंड वो होगा भी ठंडा हो जाएगा, रूफ पे डालोगे रूफ ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही पानी गिरता है रूफ पे तो जो रूफ की हीट है वो सब कहाँ चली जाती है, पानी में जाती है, चली जाती है, और पानी में जाते ही वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो वेपर में चला जाता है और हमारा सरफेस ठंडा हो जाता है। Can you cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? तो दूसरे एग्जांपल है, Why should we wear cotton clothes? कौन से कपड़े पहनते हैं हम? Cotton clothes in summer. Summer में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। During summer we perspire, हमें पसीना होता है, more because of the mechanism of our body which keeps us cool. हमारी बॉडी ठंडी होने के लिए हमें ज्यादा पसीना स्वेटिंग फील कराती है। We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. ठीक है, हमारी स्वेटिंग होता है। Evaporation में क्या होता है? During evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding. Surrounding से एनर्जी किस में जाती है, पार्टिकल्स में जाती है, और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, और क्या हो जाता है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्सॉर्ब। कौन सी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है? हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, लीविंग द बॉडी कूल। ठीक है, हमारी बॉडी की एनर्जी बाहर निकल जाती है और स्वेट फॉर्म में बाहर आती है, और स्वेट में क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी क्या होता है, जो स्वेट हमारी बॉडी से बाहर आ रहा है, कॉटन being a good absorber of water helps it absorbing the sweat. Sweat को क्या करता है, absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation.
जो स्वेट होता है बॉडी में बाहर आता है बॉडी को ठंडी करने के लिए, तो स्वेट कहाँ चला जाता है फिर कोटन में, एब्जॉर्ब करने की पावर अच्छा होता है कोटन, और कोटन उसको कोटन में चले जाता है और कोटन से फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। और तो मतलब हमें ज्यादा हीट फील नहीं होगी। Why do we see water droplets on the outer surface of glass? ग्लास पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, ठंडा पानी का ग्लास होगा तो उसको उसके आजू बाजू में ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। Let us take some ice cold water in a tumbler, एक ग्लास है उसमें आइस कोल्ड वाटर लेना है, cold water. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. tumbler के ऊपर, ग्लास के ऊपर हमें छोटे छोटे बूंद दिखेंगे। The water vapor present in air, तो क्या होता है, तो water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water, जैसे बाहर के जो हवा है वो ग्लास के कांटेक्ट में आएगी, loses energy, ठीक है। तो वो जैसे ठंडक के कांटेक्ट में आती है अपनी एनर्जी छोड़ देती है, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। ग्लास के आजू बाजू की जो गर्म हवा है वो जैसे ही ग्लास के कांटेक्ट में आएगी अपनी एनर्जी छोड़ देगी, क्योंकि ग्लास ठंडा है, और जैसे उसकी एनर्जी निकल जाएगी मतलब वो क्या हो जाएगा, फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और वही वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें ग्लास पे दिखेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो वाटर वेपर जो है आजू बाजू ग्लास के आजू बाजू वाली वाटर वेपर वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो अपनी एनर्जी छोड़ देती है, लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, मतलब वो ड्रॉपलेट्स में हमें दिखेंगे, ठीक है। उसी तरह ये तो स्टेट में हमने सॉलिड लिक्विड है गैस देखे, उसी तरह दो और स्टेट भी दिखाते हैं यहाँ पे। नाउ साइंटिस्ट्स आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हमने देख लिए, उससे ये एक दूसरे आते हैं दो, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में लिखा गया है, उसमें आयंस होते हैं, आयनाइज गैस होता है, वो प्लाज्मा स्टेट क्रिएट करता है, डिफरेंट कलर देता है। उसी तरह बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है।